Jayashri versus UN of India in the Honorable Supreme Court under Article 32 of the Constitution of India. Memo of parties. Obviously, Jayashri is the petitioner through her mother, Mrs. Neha Yadav. अब इसमें रिस्पोंडेंट्स चार लोग हैं. पहला है यूएन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. नंबर 2 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थ्रू सेक्रेटरी. नंबर 3 चीफ ऑफ एयर स्टाफ. नंबर 4 आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल. ये कुछ लोगों को मजबूरन रिस्पोंडेंट बनाना पड़ता है. दिस इज जस्ट अ बेसिक फॉर्मेलिटी. हम मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी इन चार लोगों से कुछ लड़ाई है. आर्मी हॉस्पिटल आरएनआर तो हमारी काफ़ी कुछ हेल्प ही करने की कोशिश कर रहा है. But still, there are certain formalities. These people, some people are known as pro forma defendants or respondents, मतलब कि जिनको as a formality बनाया गया है. नहीं तो कोर्ट ये पूछेगी कि आपने इनको क्यों नहीं respondent बनाया. Okay. Most respectfully showeth. The present writ petition is being filed under Article 32 of the Constitution of India, seeking urgent judicial intervention concerning the life-threatening condition of the petitioner, baby Jayashri Yadav, a minor represented through her mother Neha Yadav, wife of Corporal Prashant Singh Yadav, serving in so-and-so unit in the Air Force. The petitioner, an 11-month-old child, was diagnosed on 10th June 2024 with spinal muscular atrophy, SMA type 1, a rare and severe genetic disorder caused by a homozygous deletion of exon 7 in the SMA1 gene. If left untreated, this condition results in progressive muscle weakness, then respiratory failure and eventual death, typically within the first 2 years of life. इसमें basically जयश्री कौन है ये बताया गया है. वो जून 24 में उसको डायग्नोज हुआ SMA, और ये बताया गया है कि अगर उसे ये ट्रीट नहीं हो रहा है तो इसमें मसल्स पहले खराब होती हैं, फिर स्पाइनल फेलियर होता है, उसके बाद डेथ हो जाती है बच्चे की नॉर्मली 2 साल के अंदर. फिर इसमें हमने जयश्री का बर्थ सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद आधार कार्ड, इसको हमने एज अनेक्सर P1 अटैच किया है. ऑन 19th June 2024, the All India Institute of Medical Sciences, that is AIIMS New Delhi, prescribed one specific therapy, that is Zolgensma, which is an FDA approved gene therapy, as the only known life-saving treatment for the petitioner's condition SMA type 1. तो एम्स ने ये बताया कि एक ये FDA approved जो थेरेपी है Zolgensma, कि यही केवल एक जानी हुई इसकी ट्रीटमेंट है इस डिजीज के लिए. The medical prescription emphasized the urgency of administering the drug, noting that the therapy has shown remarkable potential to halt or reverse the disease's progression if administered before the age of 2. तो ये जो एम्स वाले डॉक्टर्स ने लिखा कि इसको बहुत जल्दी देने की आवश्यकता है, और इस ड्रग से ये होता है कि या तो वो जो बीमारी है वो या तो रुक जाती है, वो जो डिजीज है उसका प्रोग्रेशन या तो रुक जाएगा उसकी बढ़ोतरी, या फिर वो रिवर्स हो जाएगा. मतलब कि इंसान जो खराब हालत में है वो बढ़िया हालत में हो जाएगा अगर ये ड्रग 2 साल की उम्र से पहले दिया जाए तो. The prescription outlined the specifics of the treatment, including the required dosage and cost, estimated at approximately 14 crore 20 lakh rupees, that is 1.7 million US. True copy of the AIIMS doctor's prescription dated 19th June 2024 for the treatment of the petitioner is herein marked as Annexure P2 at pages 23 to 37. आज से exactly 6 महीने पहले AIIMS के डॉक्टर्स ने ये चिट्ठी दी. इसमें जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया कि क्या उसकी डोजेज है और क्या कितनी कीमत होगी. लगभग 14 करोड़ 20 लाख रुपए. That the petitioner's father, Corporal Prashant Singh, armed forces personnel with modest earnings, lacks the financial means to arrange the exorbitant amount required for the treatment. Corporal Prashant Singh की obviously तनख्वाह और financial resources nominal हैं, mediocre हैं, middle class family से हैं वो, तो वो इतना afford नहीं कर सकते. 14 करोड़ 20 लाख रुपए. That the petitioner's father, as a non-commissioned officer in the Indian Air Force, and his dependents are entitled to free and adequate medical assistance from respondent numbers 1 and 2 under the CGHS, that is Central Government Health Scheme, including for the treatment of rare and critical illnesses. Petitioner जयश्री के पिताजी प्रशांत सिंह यादव एक नॉन कमीशनड ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स में, और उनके डिपेंडेंट्स को सरकार की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फ्री
एंड एडिक्वेट मेडिकल असिस्टेंस की एंटाइटलमेंट है। मतलब जितना भी उस पर पैसा खर्च हो, सरकार उन्हें फ्री में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे, क्योंकि वो सर्विंग आर्म फोर्सेस पर्सनल हैं CGHS स्कीम के तहत। जबकि अगर कोई असामान्य या असाधारण यानी कि रेयर या क्रिटिकल डिजीजेस, मतलब कि जो संगीन, बहुत जो गंभीर डिजीज हैं, उसमें भी this entitlement reflects the obligations of respondent numbers 1 and 2 to uphold the fundamental rights under articles 14 and 21। 14 होता है right to equality, 21 होता है right to life, जिसमें right to life मतलब जिसमें right to health भी included है। और इस केस में तो अगर बच्ची की ये ड्रग नहीं मिला है तो उसकी क्या तो हेल्थ बचेगी और क्या बच्ची की जान बचेगी। ensuring equality and the right to life with dignity, actually right to लाइफ जो आर्टिकल 21 में है उसमें राइट टू लाइफ विद डिग्निटी भी कवर होता है। मतलब कि सिर्फ यही नहीं कि एक सिंपल जीवन ही नहीं, जीवन विद डिग्निटी, सम्मानजनक जीवन होना चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि अपाहिज का जीवन मिलना चाहिए। जितना जल्दी बच्ची को ये ट्रीटमेंट मिलेगा उतना जल्दी उसका इलाज हो सकेगा और उतना ही ज्यादा चांसेस हैं कि बच्ची को कोई लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटीज नहीं होंगी। दिस इज लाइफ विद डिग्निटी, इंक्लूडिंग एक्सेस टू एसेंशियल हेल्थ केयर। तो एक्सेस टू हेल्थ केयर मतलब कि मेडिसिन और ट्रीटमेंट का एक्सेस होना, का उपलब्ध होना, ये भी आर्टिकल 21 का ही पार्ट माना गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं इसके बारे में। The petitioner asserts that the refusal by the said respondents to provide financial assistance for the urgent treatment of his dependent child, despite the medical necessity and his legitimate entitlement, constitutes a breach of the welfare principles। तो अब हमारा ये कहना है कि जो सरकार का रिफ्यूजल है कि बच्ची को मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाया जाए, वो जो स्टेट के कुछ वेलफेयर प्रिंसिपल्स होते हैं सरकार के, भारत देश के, कि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, हम अपने लोगों का भला करेंगे, उसका भी, उन प्रोविजंस का भी सरकार ने ब्रीच किया है बाय नॉट प्रोवाइडिंग द ट्रीटमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर जयश्री। That the petitioner got to know that in Bikaner, Rajasthan, a child is suffering from a similar disease, that is spinal muscular atrophy type 1, and his mother was working as a government teacher in the above named place, that is Bikaner. The Teachers Association circulated a letter dated 14th June 2024 wherein it was requested from all teachers to allow the appropriate authority to cut 60 rupees from each employee's monthly salary, as it will achieve the requisite amount for treatment of that child. Although the request was voluntary and this initiative of the association was appraised, in the same way, the petitioner is also requesting that a pop-up notification be flashed in the portal of the Indian Armed Forces. True copy of letter dated 14th June 24 is herein marked as Annexure 3. तो हमें पता चला कि एक बीकानेर में एक बच्चा था जो कि सिमिलरली SMA से ग्रसित था और वो एक किसी टीचर का बच्चा था। तो टीचर्स की एक एसोसिएशन होती है। देखिए समस्या ये है कि अपनी फौज में एक एसोसिएशन नहीं होती है। सर्विंग पर्सनल के लिए दे आर कंप्लीटली बाउंड, कंप्लीटली प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉर्मिंग एनी एसोसिएशंस। अंडर आर्मी रूल 21, under Army Rule 19 to 21 there are certain restrictions, and under Army Rule 19 there is a prohibition that people, serving personnel, cannot become part of associations, part of trade unions or labor unions or things like that। तो हम लोग एकजुट होकर के अपनी मांगें रख नहीं पाते हैं कहीं पे भी, या कोई अपने आप से कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं विदाउट अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ऑफिशियली, विदाउट ऑफिशियल फॉर्मल अप्रूवल फ्रॉम आर्म फोर्सेस अथॉरिटीज हम लोग अपने आप से कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन इस केस में जो टीचर्स एसोसिएशन है उन्होंने ये किया। देखिए आर्म फोर्सेस में रिटायर्ड लोग अपनी एसोसिएशंस बना लेते हैं। बहुत शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स की एसोसिएशंस होती हैं, जवानों की एसोसिएशंस होती हैं, परमानेंट ऑफिसर्स की एसोसिएशन होती है, वगैरह वगैरह, लेकिन सर्विंग पर्सनल की नहीं हो पाती। तो इस केस में टीचर्स की एसोसिएशन ने एक सर्कुलर निकाला कि वॉलंटरी बेसिस पे हम सारे टीचर्स अपनी अपनी तनख्वाह से 60 रुपए महीना डोनेट करने के लिए हम विलिंग हैं, जिससे कि जो भी रिक्विजिट अमाउंट उस बच्चे को बचाने के लिए है वो कलेक्ट हो जाए और थोड़े टाइम के अंदर वो अमाउंट कलेक्ट हो गया। इसी तरीके से हम जयश्री के पिताजी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आर्म फोर्सेस से कि जब भी कोई व्यक्ति आर्म फोर्सेस की वेबसाइट्स, ऑफिशियल वेबसाइट्स खोले, उसमें एक पॉपअप नोटिफिकेशन ऊपर से आ जाए जिसमें ये जयश्री की जो भी बीमारी है, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, वो फ्लैश करी जाए और वॉलंटरी
डोनेशन की उसमें रिक्वेस्ट आ जाए, सरकार की तरफ से ये कदम ऑफिशियली उठाया जाए, जिससे कि जो रिक्विजिट अमाउंट है 14 करोड़ 20 लाख रुपए, वो जल्द से जल्द कलेक्ट हो सके। Point number 5, that the petitioner's father had forwarded a proposal to the respondent number 3 suggesting that a pop-up message on the Air Force's accounts platform should be coming up. This pop-up on a volunteer basis would allow personnel to opt in for donations, ensuring their contributions are received directly. Such a message would reach all personnel in an authenticated manner and would most likely be responded to positively. However, this proposal was denied by the respondents. तो जो हमने प्रपोजल दिया सरकार को कि आप अपनी वेबसाइट पे एक एक पॉपअप मैसेज ऐसे फ्लैश करने का बंदोबस्त करिए, और फिर जो भी व्यक्ति हैं वो फॉर्मली ये देखेंगे कि एयरफोर्स की वेबसाइट पे या आर्म फोर्सेस की, आर्मी नेवी एयरफोर्स की वेबसाइट पे ये पॉपअप मैसेज आ रहा है, तो ये बिल्कुल जेन्युइन केस है, फ्रॉड नहीं है, स्कैम नहीं है, इसलिए लोग वॉलंटरीली डोनेट करेंगे और बच्ची की जान आसानी से बचाई जा सकती है। लेकिन सरकार ने ये बात नहीं मानी, आर्म फोर्सेस ने, एयरफोर्स ने बात को ठुकरा दिया। That the petitioner's father approached respondent number 3 by letter number so and so dated 8th July 24, seeking financial assistance by fundraising through Civil and Government Welfare Department for the treatment of the petitioner. On 25th July 2024, the Directorate of PS Air Headquarters, vide letter number so and so, granted permission for raising funds through crowdfunding and other welfare mechanisms. कॉर्पोरल प्रशांत सिंह यादव ने एयरफोर्स को अप्रोच किया कि मुझे क्राउड फंडिंग की परमिशन दो, और वो परमिशन उन्हें मिल गई 25 जुलाई 2024 को।